Hello everyone, this is chapter 2, part number 7, role of the government in health. In my previous video, I explained about public health care services, and today I am going to explain about private health facilities. In my previous video, I already explained about the public health care services. It means what is public health care service? Public health care service means the facility provided by the government for all the citizen, or services provided by the government for all the citizens are called public health care services. So what is the definition of private health facilities? Healthcare center and facilities owned and operated by doctors privately. It means in public healthcare services, you know that the facility provided by the government, but in private healthcare facilities, the facilities provided by the doctor privately. In public health care facilities or services, the government has taken the responsibility for treatment and everything. But in a private health facility, the private doctors or personal doctors has taken the responsibility. And in public health services, we studied that we pay only less amount or no cost. But here we have to pay a huge amount of money for the treatment. Now we are going to understand why they are taking more money. Means in public health facilities, why they are taking more money. Here you can see the picture of private health care centers. They are very qualified doctors and very good facilities available. So no doubt if they are providing good facilities, so they will take lots of money. Now first, the rural area, there are registered medical practitioners, means RMPS. इट मीन्स इसको हम कैसे समझेंगे? इसको हम ऐसे समझेंगे कि जो ऐसे एरिया हैं जो ज़्यादा डेवलप नहीं हैं, वहाँ पर जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पहले वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं और वो वहाँ पर जा कर के छोटी छोटी क्या करते हैं, क्लिनिक्स खोल लेते हैं. इसका मतलब वो बेसिक ट्रीटमेंट वहाँ पर क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, और इसके बदले में आपको उन्हें क्या करना पड़ता है, मनी पे करनी पड़ेगी या फीस क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है. और वहाँ वो आपका बेसिक ट्रीटमेंट क्या करेंगे, कर देंगे. और अगर आपको सीरियस डिसीज है तो आपको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए वो क्या करेंगे, रेफर कर देंगे. पॉइंट नंबर सेकंड, इन अर्बन एरिया देयर आर लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर, क्लिनिक्स, मेडिकल शॉप्स. सो यू नो दैट इन अर्बन एरिया we find lots of doctors, and when we study the basic data of medical facilities, then already we get it in a year there are around some 15,000 doctors. मीन्स एक साल में हमको 15,000 से लगभग 15,000 क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो है वो मिलते हैं. बट व्हाट इज द नेगेटिव पॉइंट, वी ऑलरेडी स्टडीड कि
दे मूव्ड ऑन द अर्बन एरियाज, वो कहाँ चले जाते हैं, वो अर्बन एरियाज में चले जाते हैं, और जो रूरल एरिया है वहाँ पर हमको जो मेडिकल फैसिलिटी है वो नहीं मिलती है, यानी कि बेसिक जो नीड्स होती है, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ होती है वो हमें उतनी अच्छी नहीं मिल पाती है। दैट्स वाई जो विलेज एरिया या जो रूरल एरियाज़ के जो पीपल होते हैं उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए अर्बन एरिया में जाना पड़ता है। एंड इफ़ we find many doctors in urban areas, so definitely we find lots of clinics and medical shops। अभी ये सारा सब कुछ एक दूसरे से अटैच है, अगर हमें डॉक्टर्स ज़्यादा मिलेंगे तो हमें क्लिनिक्स भी ज़्यादा मिलेंगी और हमें मेडिकल शॉप्स भी ज़्यादा मिलेंगी। लाइक यू आई एम गिविंग अ एग्जाम्पल, लाइक यू नो वेरी वेल नागपुर, कि नागपुर में बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या होती है, अवेलेबल होती है। अब जो नागपुर है वो कौन सा एरिया है, अर्बन एरिया है। सो जहाँ ज़्यादातर जो डॉक्टर्स होते हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अर्बन एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं, और जो रूरल एरिया के लोग होते हैं वो मेडिकल फैसिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और जब बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है तो वो क्या करते हैं, दे मूव टू द अर्बन एरिया फॉर द ट्रीटमेंट। पॉइंट नंबर 3, फॉर प्राइवेट health facilities, patient have to pay lot of money for every services। When we study the Hakim Sheikh story, then we already get it कि when he went to the private hospital he has to pay a lot of amount for his treatment। No doubt प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने से उसकी लाइफ जो है, उसकी जान जो है वो बच जाती है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। जस्ट ऑपोजिट ऑफ द पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और हेल्थ केयर सर्विसेज। मीन्स पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज में गवर्नमेंट हैज़ टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ वाई द गवर्नमेंट हैज़ टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी नो दैट बिकॉज वी पे टैक्स। सो इट इज़ अवर बेसिक राइट टू गेट द बेसिक फैसिलिटीज लाइक health facility, education facility, employment and many more. We already studied. So अगर हम टैक्स पे करते हैं तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब अगर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एंड अगर हमको पब्लिक फैसिलिटीज़ में ज़्यादा पैसे पे करने होंगे, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट, तो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। दैट्स वाई इन पब्लिक फैसिलिटीज़ we pay very less amount and in private facilities we pay a large amount। Point number 4, private facilities can be seen all around us। अब nowadays आपको पता ही है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो कहाँ शिफ्ट हो गए हैं, many people shift in the urban areas and already हम पढ़ चुके हैं कि हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, वो रूरल एरिया में जाकर के नहीं सेटल होना चाहते हैं, वो मूव ऑन करते हैं अर्बन एरिया में। सो हमें हमारे अर्बन एरिया में प्राइवेट फैसिलिटी हर जगह पे देखने के लिए मिलती है, बट इन फैसिलिटीज़ के लिए हमें क्या करना होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। देन नेक्स्ट पॉइंट, लार्ज कंपनीज that run hospital and engaged in manufacturing and selling medicines। अब एक पॉइंट हमको और भी देखने के लिए मिलता है कि जो लार्ज कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, दे रन हॉस्पिटल्स, वो हॉस्पिटल्स को भी क्या करती हैं, चलाती हैं, एंड दे एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग मेडिसिन। मतलब आपने देखा होगा कई बार कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हमें डॉक्टर मिलते हैं, दे रिकमेंडेड सम मेडिसिन, वो कुछ दवाइयों को रिकमेंड करते हैं एंड कुछ पर्टिकुलर ही शॉप्स में वो दवाई क्या होती है, अवेलेबल होती है। सो वो क्या होते हैं, वो इंगेज हो जाते हैं दवाइयों को बनाने के लिए और उन्हें बेचने के लिए, क्योंकि इससे या अगर ये फैसिलिटी वो प्रोवाइड कराते हैं तो इससे वो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी क्या करते हैं, गेन कर सकते हैं। सो दीज आर सम बेसिक पॉइंट्स टू make the difference between public health services and private health facilities, and also these are some qualities of private health facilities, and
होप आपको इस वीडियो के थ्रू ये समझ में आ गया होगा कि प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ और पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में क्या डिफरेंसेस है. सो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज वेरी cheap and private health facilities are we have to pay lots of amount. And in public health services जो डॉक्टर्स होते हैं या जो फैसिलिटीज़ होती हैं हमें उतनी अच्छी नहीं मिल पाती हैं जितनी कि हमें प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ में क्या होती हैं, मिलती हैं. एंड जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, बट जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ होती है वो हमें उतनी ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलती है. जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है दे रन बाय द गवर्नमेंट. एंड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ health care centers facility owned and operated by the doctors privately. So private health जो services facilities होती हैं they run by the doctor privately, वो खुद चलाते हैं. एंड पब्लिक में गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. एंड इन पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो रूरल एरियाज़ में होते हैं उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोलते हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं. एंड इन प्राइवेट फैसिलिटी देयर आर मैनी क्लिनिक्स और नर्सिंग होम्स आर अवेलेबल. सो दीज आर some qualities of private health facilities and public health services. So in my next video I am going to tell you about health and equality, and hope by this video you understand the concept of private health facilities. So take care.